چند مسائل نے اسلام آباد میں مجھے اس اجلاس میں شرکت سے روک رکھا ہے۔ ہماری پالیسیاں عمل لائی ہیں، افراط زر 3% سے کم ہو گئی ہیں۔ آپریشن سے ایک روز قبل وزیر اعظم نے تاریخ رقم کر دی۔ پہلی بار ویڈیو لنک کے ذریعے قومی اقتصادی کونسل اور کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی۔ کسانوں کے لیے خصوصی پیکج کی ہدایت، کہتے ہیں باہر اپنی مرضی سے نہیں علاج کے لیے آیا ہوں، لہو کی ایک ایک بوند وطن کی مٹی کے لیے قرض ہے، جلد صحت یاب ہو کر پھر خدمت کروں گا۔ وزیر اعظم کی اوپن ہارٹ سرجری کل لندن کے اسپتال میں ہوگی۔ آپریشن کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل۔ نواز شریف کہتے ہیں صحت یابی کے لیے دعاؤں پر قوم کا احسان مند ہوں۔ ملک بھر میں دعائیہ تقریبات، سیاسی رہنماؤں کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار، بکروں کے صدقے بھی دیے گئے۔ ساری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی انرجی لیول واپسی کے بعد دگنی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بلوچستان کے عوام آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میاں صاحب اللہ آپ کو صحت دے۔ وفاقی وزراء نے وزیر اعظم کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دعا دی تو ساتھ شکوہ بھی کر ڈالا۔ کو کہیں بھی کہ ذرا ہمارے ساتھ ہاتھ اچھی طرح سے ملا کے رکھے۔ آپ ہوتے تو آپ سے تو بڑی حجت ہے۔ آپ ہوتے تو سختی کرتے، اب تعاون کریں گے۔ پرویز خٹک نے بھی چٹکلا چھوڑا۔ ہم یقیناً اسحاق ڈار صاحب اور ان سب کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ آپ ہوتے تو ہو سکتا ہم ذرا سختی کرتے۔ بجٹ میں عوام کی اوپن ہارٹ سرجری کا فیصلہ، 160 ارب روپے کے نئے ٹیکس میزائل تیار، لانچ ہوتے ہی مہنگائی کی خوفناک آگ بھڑک اٹھے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی تجویز، انکم ٹیکس کو شوارے جمع نہ کروانے والے تنخواہ دار ملازمین کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس دوگنا کیے جانے کا امکان۔ رمضان اور بجٹ سے قبل ہی مہنگائی نے عوام کے بجٹ کا ستیاناش کر دیا۔ سبزی، پھل، دودھ، کھجوریں، سب کے دام آسمان پر۔ شعلے مزید بھڑکانے کے لیے تیل بھی چھڑکنے کا فیصلہ۔ 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹس 6 روپے 69 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان۔ سمری وزارت خزانہ کو بھجوا دی گئی۔ کر کے بھاگنے کو احتساب کہتے ہو؟ جمہوریت کو احتساب سے خطرہ نہیں، اگر خطرہ ہے تو تخت رائیونٹ کو خطرہ ہے۔ بلاول نے دل ناتواں کا بھی خیال نہ کیا۔ میرپور میں وزیر اعظم پر تابڑ توڑ حملے، استعفے کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ احتساب سے جمہوریت کو نہیں تخت رائیونٹ کو خطرہ ہے۔ میاں صاحب شیر ڈیزل پر نہیں چلتا، حساب نہ دیا تو نعرہ ہوگا کرپشن کے سردار کو ایک دھکا اور دو۔ کراچی پولیس کی غفلت سے بڑھا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ بن قاسم روڈ پر چینی انجینئرز کی گاڑی کے قریب دھماکہ، عینی شاہدین نے سڑک کنارے نصب بم کی نشاندہی کر دی تھی۔ اہلکار دوسروں کو بچانے کے بجائے خود نکل لیے۔ خوش قسمتی سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ذمہ داری را کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے قبول کر لی۔ آرمی چیف سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ جنرل راحیل شریف پاک ترک مشترکہ فوجی مشقوں کا جائزہ لیں گے۔ ISPR کے مطابق پہلا مرحلہ آج رات اور دوسرا کل دن میں ہوگا۔ چڑیا ننھی سی چڑیا انگنا میں پھر آ جا رے۔
एक्सप्रेस न्यूज आवाज बना तो जिंदगी की उम्मीद उमरकोट की 2 नन्ही परियों को कराची ले आई। बच्चियों के जिस्म के साथ साथ दिल, जिगर और गुर्दे भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टरों ने मुकम्मल सेहतयाबी तक सर्जरी नामुमकिन करार दे दी। कभी किसान, कभी क्लर्क, कभी यंग डॉक्टर्स तो कभी कोई और। लाहौर का माल रोड है या तमाशा। आज नर्सें मुतालिबात मनवाने पहुंच गईं। कड़कती धूप में धरने को भी तफरीक का रंग दे दिया। तस्वीर और सेल्फियां बनवाती रहीं। हर बार की तरह अवाम बदतरीन ट्रैफिक का अजाब झेलते रहे। एम्बुलेंसेस को भी रास्ता नहीं मिला। जितना बड़ा शहर उतने ज्यादा मसाइल। कराची के लोग बिजली और पानी की तलाश में सड़कों पर मारे मारे फिरने लगे। कोरंगी के इलाके वीटा चौरंगी पर मकीनों की दुहाइयां। एहतजाज करके रोड बंद कर दिया। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। जो पकड़ा जाए जाली पीर, बाकी का कारोबार जारी। साहिवाल में मुरीद को वरगलाने की कोशिश पर आमिल की सारी चालें उल्टी पड़ गईं। खातून गिरेबान से पकड़कर हुजरे से बाहर लाई और सरेआम जूतों से धुलाई कर दी। धुलाई के बाद मजीद खातिर तवाज़ो के लिए पुलिस के सुपुर्द। सूरज ने फिर आंखें दिखाईं तो रात की तारीकी में बादलों ने हंगामी इजलास बुला लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में आंधी चली, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी ने गर्मी को जबरी रुखसत पर भेज दिया। दर्जा हरारत भी अपनी औकात पर आ गया। बुलेटिन में खुशामदीद नाजरीन। वजीर आजम नवाज शरीफ ने तारीख रकम कर दी है। तारीख में पहली बार स्काइप पर वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास की सदारत की है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन से वजीर आजम ने लंदन बैठकर बजट तजावीज की मंजूरी दे दी। वजीर आजम का कहना है कि बाहर अपनी मर्जी से नहीं, इलाज के लिए आया हूं और जल्द सेहतयाब होकर फिर खिदमत करूंगा। तजावीज की मंजूरी दे दी है वजीर आजम नवाज शरीफ ने और उन्होंने ये भी कहा कि बाहर अपनी मर्जी से नहीं, इलाज के लिए आया हूं। तारीख रकम की गई है आज और स्काइप पर वीडियो लिंक के जरिए वजीर आजम नवाज शरीफ ने काबीना इजलास की सदारत की है और उनका वजीर आजम ने तारीख रकम की है और पहली बार वीडियो लिंक के जरिए काबीना इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने नया काम कर डाला। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा लंदन से वीडियो लिंक के जरिए कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत की और बजट तजावीज की मंजूरी भी दे डाली। मीटिंग में पेश किए गए एजेंडे के आइटम नंबर 1 से 8 तक मंजूर किए जाते हैं। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जहां अपनी हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की, वहीं अपनी बीमारी का जिक्र करते हुए दुआया पैगामात देने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। तफसीली मुआयने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन जरूरी करार दिया है। मुझे पूरी तरह इल्म है कि मेरी कौम मेरे लिए मुसलसल दुआएं कर रही हैं। ये दुआएं ही मेरे लिए सबसे बड़ा असासा है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने वज़ीर खजाना को नए बजट में किसानों के लिए खसूसी पैकेज देने की हिदायत भी की। डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि अभी बजट के अंदर इंशाअल्लाह काश्तकारों के लिए एक खसूसी पैकेज और ख़ास तौर पे यूरिया की कीमतें जो हैं वो सब्सटेंशली कम करें। कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने नए माली साल के आदाफ का जिक्र किया। हमारी हुकूमत आने के बाद से गुज़श्ता 3 साल में GDP में इजाफा की शरह 4% से ज्यादा रही है और मौजूदा माली साल में ये शरह 4.71% रही है।
قومی اقتصادی کونسل اور وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا انہوں نے اپنی زندگی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وقف کر دی ہے. انہیں صحت کے مسائل درپیش ہیں مگر وہ جلد صحت یاب ہو کر ایک بار پھر ملک اور قوم کی خدمت کریں گے. پاکستان آئندہ باد. وزیر اعظم نواز شریف نے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے 2 بڑے اجلاسوں کی صدارت کی. قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس شروع ہوا تو وفاقی وزراء، گورنرز اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نواز شریف کے سامنے دعائیہ پیغامات کے ڈھیر لگا دیے. مگر مائک سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزراء اعلیٰ کے ہاتھوں میں آیا تو دعاؤں کے ساتھ کچھ شکوے بھی کر ڈالے. لندن میں موجود وزیر اعظم نواز شریف نے ویڈیو لنک سے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی صدارت کی مگر یہ اجلاس اقتصادی کم اور دعائیہ تقریب زیادہ دکھائی دیا. وفاقی وزراء نے وزیر اعظم اور اپنے سیاسی قائد نواز شریف کو صحت کی ڈھیر دعائیں دیں. ساری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ خیر خیریت سے آپ جلد واپس آئیں. بہت جلد آپ تشریف لائیں گے تو آپ کی لیڈرشپ میں ان تمام گولز کو ہم پہلے سے زیادہ محنت سے کریں گے چونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی انرجی لیول واپسی کے بعد دگنی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اجلاس کا مائک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اور وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کے ہاتھوں میں آیا تو انہوں نے دعاؤں کے ساتھ کچھ شکوے بھی کر ڈالے. آج آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سے بات ہو گئی. باقی جو ایجنڈا ہے جس پر بات ہم کر رہے ہیں وہ بھی سامنے ہیں ہمارے، ان سے بھی بات چیت ہوگی. آپ دعا کریں کہ یہ ان کو کہیں بھی کہ ذرا ہمارے ساتھ ہاتھ اچھی طرح سے ملا کے رکھیں اور جو ہماری گزارشات ہوں گی ان پر غور کریں. ہم یقیناً اسحاق ڈار صاحب اور ان سب کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. آپ ہوتے تو ہو سکتا ہم ذرا سختی کرتے لیکن آپ کی غیر حاضری میں کیونکہ ہمیں بہت فکر ہے آپ کا اور اللہ آپ کو صحت مند اور کے واپس لائے. جی خٹک صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں دیے گئے دعائیہ پیغامات پر وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر وطن لوٹیں گے. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے وہ ملک سے باہر مرضی سے نہیں علاج کے لیے آئے ہیں. انہوں نے تمام وزراء اعلیٰ کا ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے پر شکریہ ادا کیا. وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کوئی اپنی مرضی سے نہیں تو علاج کے لیے آیا ہوں تو ایسے حالات میں میرے خیال ہے کہ جو بیسٹ پاسبل طریقہ تھا وہ یہی تھا جس کو کہ اپنایا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ سب کو جب معلوم ہے حالات کا سچویشن کا تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی یہی طریقہ کار ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اور میں پوری قوم کا بہت مشکور و بڑا احسان مند ہوں جو میرے لیے دعا کر رہے ہیں. اہم خبر یہ کہ بجٹ میں عوام کی اوپن ہارٹ سرجری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. مہنگائی کی بھڑکتی آگ پر بجٹ ایندھن بن کر گرے گا. 1 کلو سیمنٹ پر 1 روپیہ ٹیکس کی تجویز. بجٹ میں عوام کی اوپن ہارٹ سرجری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور مہنگائی کی بھڑکتی آگ پر بجٹ ایندھن بن کر گرے گا. 1 کلو سیمنٹ پر 1 روپیہ ٹیکس کی تجویز اور سستے موبائل فون پر 1000 اور مہنگے پر 1500 ٹیکس لگے گا. وزیر اعظم نواز شریف نے اگلے سال کے وفاقی بجٹ کی تجاویز کی منظوری دے دی ہے. ایکسپریس نیوز کو حاصل دستاویزات کے مطابق بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے 1675 ارب روپے رکھے گئے ہیں. دفاع پر 800 ارب روپے خرچ ہوں گے. ٹیکس وصولیوں کا ہدف 3620 ارب روپے رکھا گیا ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے پچھلے 2 سالوں کے 10% اور 7.5% ایڈ ہاک ریلیف کو شامل کر کے بنیادی تنخواہ 5 سے 10% بڑھائی جا رہی ہے. پینشن میں 15% اضافے کی تجویز ہے. کنوینس الاؤنس میں اضافے کے علاوہ گریڈ 16 تا 22 کے ملازمین کو بھی فکس رقم کی صورت میں میڈیکل الاؤنس دینے کی بھی تجویز. اگلے وفاقی بجٹ میں کاپیاں، کتابیں، سیمنٹ، پینٹس، ایئر کنڈیشنرز اور سگریٹ مہنگے کیے جا رہے ہیں جبکہ بیوریجز
इंडस्ट्री पर भी 12.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है। खवातीन के लिए भी बुरी खबर है क्योंकि मेकअप के सामान पर भी टैक्स लग रहा है। अशिया तयोशात पर 25% कस्टम ड्यूटी लगने वाली है, जबकि ताजरों के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 9th शेड्यूल मुतारिफ कराया जा रहा है। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा भी तंग किया जाएगा और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए टैक्स की शरह दोगुना की जा रही है। एशवुड की दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने के अलावा बैंक से निकलवाने पर टैक्स के लिए रकम की हद 1 लाख रुपए यौमिया करने की तजवीज़ है। IT सॉफ्टवेयर की बरामदात पर टैक्स छूट की मियाद में मजीद 5 साल की तौसी की तवक्को। गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइसेस और कंसाइनमेंट्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी शनाख्ती चिप की तनसीब को लाजमी करार दिए जाने का इम्कान है। इरशाद इंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ब्रेकिंग न्यूज है आपको। वजीर आजम की ओपन हार्ट सर्जरी कल लंदन के अस्पताल में होगी, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दोपहर 1 बजे अस्पताल पहुंचेंगे। वजीर आजम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दोपहर 1 बजे अस्पताल पहुंचेंगे। सेहतयाबी के लिए दुआओं पर कौम का एहसान मंद हूं, वजीर आजम नवाज शरीफ का ऐसा कहना था। सियासी रहनुमाओं की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया, बकरों के सदके भी दिए गए। ब्रेकिंग न्यूज है ये वजीर आजम की ओपन हार्ट सर्जरी से मुतालिक, जो कल लंदन के अस्पताल में होगी और इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ के दिल का इलाज कल होने जा रहा है। तफसीली मुआयने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन जरूरी करार दिया है। इसके लिए कल का दिन मखसूस किया गया है। वजीर आजम नवाज शरीफ ओपन हार्ट सर्जरी के लिए कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे अस्पताल पहुंचेंगे, जहां उनके मजीद टेस्ट किए जाएंगे। नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर और दूसरे टेस्ट नॉर्मल आए तो सर्जरी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। दूसरी सूरत में ऑपरेशन की तारीख तब्दील की जा सकती है। लंदन में डॉक्टरों ने वजीर आजम नवाज शरीफ को सर्जरी से पहले मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। नवाज शरीफ के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बैक टू वर्क तो आप ये समझ लो कि 3 महीने से पहले मुश्किल होता है कि आदमी अपने काम को ज्वाइन कर सके। ठीक है जी। अब इस तमाम ड्यूरेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पेशेंट की सेक्स है, पेशेंट की एज है, पेशेंट के कोमॉर्बिड्स हैं, पेशेंट की और डिजीज़ हैं जो इस ड्यूरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। मे बी कि ये ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाए, मे बी कि ये ड्यूरेशन थोड़ा प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। वजीर आजम नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी के पेश नज़र उनकी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज और उनके दोनों साहबजादे, जबकि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके भी दोनों साहबजादे लंदन में मौजूद हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मैं पूरे एतमाद हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जल्द इस सूरत हाल से बाहर आने के काबिल बनाएगा। कौम की दुआएं अपने वजीर आजम के साथ हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सियासत के उतार चढ़ाव की। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मीरपुर जलसे से खिताब, और इस खिताब में उन्होंने एक बार फिर वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मियां साहब, शेर डीजल पर नहीं चलता। एहतसाब से जमहूरियत को नहीं, तख्ते रायबंद को खतरा है। एहतसाब से जमहूरियत को नहीं बल्कि तख्ते रायबंद को खतरा है, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो का। मोदी के यार को, करप्शन के सरदार को। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मफाहमत की खबरों को दफन कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीरपुर जलसे से खिताब में साफ साफ कह दिया कि वो एहतसाब के मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं। शरीफ खानदान ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दुबई और जद्दा में स्टील मिल्स कैसे लगाए, पनामा में ऑफशोर कंपनीज कैसे बनाए। आप कुछ भी कहें, अब आपको हिसाब देना होगा। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब के दौरान हुकूमत पर तनकीद के तीरों की बारिश किए रखी। बलूचिस्तान के सेटल्ड एरियाज में ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं।
सी पैक के मंसूबों को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। अमेरिका से F-16 लेने में भी नाकाम है। कश्मीर कोस पर तो आपका मौकिफ ही कमजोर है। आज आपकी वजह से मुल्क की खारजा पॉलिसी तबाही का शिकार है। वजीर आजम से इस्तीफा का मुतालबा अपनी जगह, मगर मैं आज वजीर खारजा का इस्तीफा मांगता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने साबिक सदर से मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान को लंदन भिजवाने पर भी चोट की। मियां साहब, शेर डीजल पर नहीं चलता। मीरपुर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने गर्मा गर्म खिताब करके जयालों के दिल जीते, तो जयालों ने भी इस्लामाबाद से मीरपुर तक जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल करके अपने चेयरमैन के दिल में जगह बना ली। कारकुनों का वालिहाना जोशो जज्बा देखकर बिलावल भुट्टो ने बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाकर तकरीर की, जिसे शुरका ने खूब सराहा। जायजा अमन की सूरत हाल का। कराची में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी के करीब धमाके की जिम्मेदारी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाली कलदम तंजीम सिंधु देश लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली। वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कई मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि मशकूक प्रेशर कुकर की इत्तला मिलने के बावजूद कार्रवाई करने वाले पुलिस एहलकार ताहाल गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। तफसील बता रहे हैं मुजाहिर सईद। शहर कायद में गैर मुल्कियों की गाड़ी को निशाना बनाने वाले दुश्मनों और रॉ के एजेंटों की कार्रवाई तो खुशकिस्मती से कामयाब न हुई, मगर उसने पुलिस एहलकारों की इंतहाई गफलत और गैर संजीदगी जरूर फाश कर डाली। शहरियों ने रास्ते में पड़े मशकूक प्रेशर कुकर की पुलिस को बार बार इत्तला दी, मगर मुहाफिज कानों में रुई ठूंस कर गायब हो गए। शापर को जैसे ही हमने हिलाया खोला तो जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता, प्रेशर कुकर की तरह था वो। उसमें जब शापर को खोला तो इतना सा एरियल भी था, और जैसे मोबाइल नहीं वायरलेस सेट होता है ऐसे उसके ऊपर रखा हुआ। तो हम सब लोग इकट्ठे हो गए कि ये क्या पड़ा है। फिर हमने यहाँ पर रोड पे मोबाइल गुजर रही थी पुलिस वैन, उसको रोका कि यार यहाँ पर ये कुछ पड़ा है, ये बम वगैरह लग रहा है, आप इसको ना किसी को बुलाओ, इसको बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाओ, कुछ ना इसका करो। तो वो नहीं रुका, बोला कि छोड़ो हमारा काम नहीं है। जिला पुलिस सरबराह कहते हैं कि शहरियों की इत्तला पर कार्रवाई न करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अगर वो इस एरिया के नहीं भी हैं तो ये उस जिसको रोक के ये कहा गया है उसका पता कर रहे हैं, और उसने नेग्लिजेंस है उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। स्टील टाउन में सुबह 8:30 बजे बिन कासिम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी जैसे ही कौमी शाहराह पर पहुंची तो धमाका हो गया, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ताहम चीनी इंजीनियर्स महफूज रहे। गाड़ी एकदम जो टोयोटा जो है जो भी है एक्सेल, वो एकदम उसके शीशे से बड़े फटे निकले उसमें। तो आहिस्ता से ड्राइवर ने बाहर कंट्रोल किया। ऐसे तो खड़ोते गाड़ी अपने कोई जब बम फटा है, अरे पुलिस वाले ने डकिया हुई खड़ोता चला गया, कहता थाने तला दो। बाद में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाली दहशतगर्द तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दहशतगर्दों ने रिमोट कंट्रोल बम से ज्यादा नुकसान के लिए नट बोल्ट और फौलादी कीलों का इस्तेमाल किया। धमाके की जगह से मिलने वाले पंफलेट्स को लेकर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बिन कासिम के इलाके से कई मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया है। मज़ाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ तुर्की पहुंच गए। वो वहां पर मुश्तरका जंगी मशकों का मुआयना करेंगे। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंचे हैं, जहां वो दोनों मुल्कों की मुश्तरका जंगी मशकों का जायजा लेंगे। पाक तुर्क अफवाज की मुश्तरका जंगी मशकें इज़मीर के करीब मुनक्किद की जा रही हैं। ISPR के मुताबिक जंगी मशकें 2 मरहलों में होंगी। आर्मी चीफ दोनों मरहलों की मशकें देखेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि ओगरा ने भी महंगाई की भड़कती आग पर तेल छिड़कने का फैसला कर लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। जी हां, ओगरा की समरी के मुताबिक पेट्रोल 85 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 69 पैसे फी लीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन हतमी फैसला वजीर आजम से मुशावरत के बाद ही किया जाएगा।
पूरा मुल्क पहले ही महंगाई की आग में जल रहा है। ऐसे में ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी भिजवाकर जल्दी पर तेल छिड़कने का काम किया है। ओगरा की भिजवाई गई समरी में इजाफी जीएसटी के बायस कीमतों में 6 रुपए 69 पैसे फी लीटर तक इजाफे की तजवीज दी गई है। ओगरा ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 85 पैसे जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 4 रुपए 57 पैसे फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की है। हाई ऑक्टेन 2 रुपए 18 पैसे, लाइट डीजल 4 रुपए 47 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल ऑयल 6 रुपए 69 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। वजारत खजाना जून के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान वजीर आजम नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद करेगी। नई कीमतों का इतलाक 1 जून से होगा। खबर दें आपको साहिवाल से, जहां जाली पीर ने अपनी मुरीद को वरगलाने की कोशिश की जो उसे महंगी पड़ गई। खातून ने पहले तो खुद जाली पीर की जूतों से आओभगत की, रही सही कसर लोगों ने निकाल दी। जाली पीर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। खातून से सरेआम जूते खाने वाला ये नौजवान एक पीर है जिसकी जालसाजी का पोल उसकी अपनी ही मुरीद ने खोल कर रख दिया है। साहिवाल के इलाके रत्ती टिब्बी में मसाइल से तंग खातून अपनी परेशानियां लेकर एक पीर के डेरे तक जा पहुंची। जाली पीर ने परेशान खातून का मसला हल करने की बजाय उसे वरगलाने की कोशिश की, लेकिन पांसा उल्टा पड़ गया। खातून जाली पीर को गिरबान से पकड़कर हुजरे से बाहर घसीट ले आई और जूतियों की बारिश कर दी। शोर सुनकर लोग भी इकट्ठे हो गए और सबने मिलकर जाली पीर की अच्छी तरह धुलाई कर दी। भरे मजमे में जाली पीर की अच्छी तरह धुलाई के बाद लोगों ने पुलिस को बुला लिया और जाली पीर को उनके हवाले कर दिया। पुलिस ने जाली पीर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। उम्मीद है कि जाली पीर की आवभगत में जो कसर रह गई है वो थाने में पूरी हो जाएगी। साहिवाल के बाद रुख कराची का, जहां पर पानी और बिजली की अदम फराहमी ने शहरियों को सड़कों पर ला खड़ा किया। कोरंगी और माड़ीपुर में एहतजाज करके सड़कें ब्लॉक कर दी। इंतजामिया की यकीन दहानी मुजाहिरीन मुंतशर हो गए। तफसील जानते हैं सिप्ते हसन से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची आजकल एहतजाज की जद में आया हुआ है। कहीं बिजली गायब है तो कहीं कोई पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। पीर को कोरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी और माड़ीपुर रोड के मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो घरों से निकल आए और शदीद एहतजाज किया। हमारे इलाके के मसले मुद्दे डालो। मुजाहिरीन ने लांढी जाने वाली मरकजी शाहराह को टायर नजर आतिश करके ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक जैम और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का शिकवा था कि पानी है न बिजली, उनके इलाके को लावारिस छोड़ दिया गया है। 8 साल हो गए, ये क्यों नहीं जाग रहे, क्या कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं। आंख उठाकर नहीं देखा है कि इस इलाके के लोग, इस इलाके के जो लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या पीते हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है, उनके क्या हालात हैं। बिलाल कॉलोनी के रिहायशियों ने डीसी कोरंगी की जानिब से पानी की फराहमी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया, जबकि माड़ीपुर रोड पर भी एहतजाज के बायस ट्रैफिक में फंसे शहरी घंटों ख्वार होते रहे। सिप्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मुल्ला मंसूर की हलाकत के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पहला बाज़ाब्ता राब्ता। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने अफगान सफीर से ड्रोन हमले पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। मुल्क भर में एक दिन रोजा, एक ही दिन ईद। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कल पेशावर में मुफ्ती पोपल से मुलाकात करेंगे।